دوستو، بگ سوچوں میں خوش آمدید۔ دریاؤں کی تقسیم پوری دنیا میں ہی ایک انتہائی پیچیدہ اور مشکل مسئلہ سمجھا جاتا ہے، اور دنیا بھر میں اس پر مختلف ممالک کے درمیان اختلافات عام سی بات ہیں۔ ایسا ہی کچھ برصغیر کی تقسیم کے بعد پاکستان اور بھارت کے درمیان بھی ہوا، جب قیام پاکستان کے چند ہی ماہ بعد بھارتی پنجاب سے پاکستان کے مغربی پنجاب آنے والے پانی کو بھارت نے روک لیا، کیونکہ مغربی پنجاب آنے والی نہروں کا کنٹرول بھارتی پنجاب میں واقع ہیڈ ورک سے ہوتا تھا۔ کیونکہ یہ ایک مستقل اور حساس مسئلہ تھا، اس لیے اس پر عالمی طاقتیں بھی انوالو ہو گئیں اور پاکستان اور بھارت کے درمیان مذاکرات کا ایک طویل سلسلہ شروع ہو گیا، جو بالآخر اس معاہدے پر ختم ہوا جو 19 ستمبر 1960 کو کراچی میں دونوں فریقین کے درمیان ورلڈ بینک کی ثالثی میں سائن ہوا۔ اس معاہدے کو سنتاس معاہدہ یا انڈس واٹر ٹریٹی کہا جاتا ہے۔ اس معاہدے میں پاکستان کو کیا ملا اور بھارت کے حصے میں کیا آیا، یہ سب جاننے کے لیے اس معاہدے کے مختلف نکات کا جائزہ لیتے ہیں۔ پہلا نکتہ، مشرقی دریا راوی، ستلج اور بیاس بھارت کو مل گئے۔ راوی، ستلج اور بیاس پر مکمل طور پر بھارت کا حق تسلیم کر لیا گیا تھا، نہ صرف دریاؤں پر بلکہ اس میں آ کر شامل ہونے والی ٹریبیوٹریز یعنی ندی، نالے، چشمے اور معاون چھوٹے دریاؤں پر بھی۔ ہاں، جب ایک دفعہ راوی اور ستلج حتمی طور پر پاکستان کی حدود میں داخل ہو جائیں تو اس کے بعد اگر کوئی ندی، نالا وغیرہ آ کر اس میں شامل ہو تو اس کا پانی پاکستان استعمال کر سکتا ہے۔ یہاں حتمی طور پر سے مراد یہ ہے کہ دریائے ستلج سلیمان کی سے ذرا پہلے ہستہ بند کے قریب پاکستان میں داخل ہوتا ہے اور اس کے بعد دوبارہ انڈیا کی حدود میں نہیں جاتا، اور اسی طرح راوی بھی BRB ڈی لنک سے تقریباً 1.5 میل پہلے جب پاکستان کی حدود میں آتا ہے تو پھر دوبارہ بھارت کی سرزمین پر نہیں جاتا، اور دریائے بیاس جو تیسرا دریا اس معاہدے کے تحت بھارت کو ملا تھا، وہ تو پاکستان میں داخل ہونے سے پہلے ہی دریائے ستلج میں مل جاتا ہے۔ ان مقامات پر جہاں دریائے ستلج یا راوی یا ان میں شامل ہونے والے کوئی ندی، نالے یا چشمے پاکستان میں بہتے ہیں اور پھر دوبارہ بھارت میں داخل ہو جاتے ہیں، تو ایسے مقامات پر پاکستان کو یہ اختیار حاصل نہیں ہے کہ وہ ان دریاؤں یا نالوں کے بہاؤ کو روکے یا ان کا پانی استعمال کرے۔ ہاں، گھریلو ضروریات اور صرف اس محدود علاقے کی زرعی ضروریات اس پانی سے پوری کی جا سکتی ہیں جہاں یہ بہہ رہے ہوں۔ ایسے تمام علاقوں کی تفصیلات بھی معاہدے میں طے کر لی گئی ہیں۔ مطلب یہ کہ پاکستان اس پانی پر ڈیم یا بند وغیرہ نہیں بنا سکتا اور نہ ہی نہر نکال کر پانی دور دراز کے علاقوں تک پہنچا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ وہ کام جن سے پانی کے بہاؤ پر فرق نہیں پڑتا، جیسا کہ دریا سے ریت یا پتھر نکالنا، ماہی گیری وغیرہ، اس طرح کے کام پاکستان کر سکتا ہے۔ ان مشرقی دریاؤں پر پاکستان کو اتنا حق ضرور حاصل ہے کہ جب یہ دونوں دریا حتمی طور پر پاکستان کی حدود میں داخل ہو گئے ہیں تو اس کے بعد اگر کوئی ندی، نالا وغیرہ آ کر ان دریاؤں میں شامل ہو رہا ہے تو اس کا پانی پاکستان استعمال کر سکتا ہے، چاہے وہ بھارت ہی سے کیوں نہ بہہ کر آ رہا ہو۔ لیکن پاکستان بھارت سے یہ مطالبہ نہیں کر سکتا کہ وہ کسی ایسے ندی، نالے کا پانی استعمال نہ کرے، کیونکہ اس کے بہاؤ پر مکمل طور پر بھارت کا حق ہے۔ مطلب یہ کہ اگر پانی ہو تو پاکستان استعمال کر سکتا ہے اور اگر نہ ہو تو مطالبہ نہیں کر سکتا۔ مین دریاؤں راوی اور ستلج پر بھی یہی فارمولا لاگو ہے۔ جب وہ حتمی طور پر پاکستان میں داخل ہو جائیں کہ اگر بھارت سے پانی آ جائے تو پاکستان استعمال کر سکتا ہے اپنی مرضی کے مطابق، لیکن بھارت سے پانی چھوڑنے کا مطالبہ نہیں کر سکتا۔ پاکستان کو ان مشرقی دریاؤں اور ان کے ندی نالوں کو آبی گزرگاہ کے طور پر استعمال کرنے کا بھی پورا حق ہے۔ اگر کوئی ندی، نالا یا معاون دریا پاکستان کی سرزمین سے گزر رہا ہے لیکن وہ بھارت کی حدود میں داخل ہوتا ہے اور اس کے بعد دوبارہ پاکستان کی حدود میں داخل ہو جاتا ہے تو ایسے ندی نالے میں پاکستان خود کسی اور ذریعے یعنی کسی مغربی دریا یا ڈیم سے پانی چھوڑ سکتا ہے، اور یہ پانی اس ندی نالے کے اپنے پانی کے علاوہ ہوگا، اور اس ندی نالے میں پانی کی جتنی مقدار پاکستان داخل کرے گا بھارت اس میں کمی نہیں کر سکتا، یعنی اس کو استعمال نہیں کر سکتا۔ ہاں، جو پانی کی مقدار اس ندی یا نالے کی اپنی تھی اس کو بھارت استعمال کر سکتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر پاکستان نے کسی ندی یا نالے میں 50 کیوسک پانی ڈالا
और फिर ये नाला भारतीय हदूद में दाखिल हो गया, लेकिन दोबारा ये नदी नाला पाकिस्तान में दाखिल होगा तो भारत कम से कम 50 क्यूसिक पानी लाजमी छोड़ेगा, क्योंकि वो पाकिस्तान का अपना पानी था। हाँ, 50 क्यूसिक से ऊपर वाला पानी भारत इस्तेमाल करने का हक रखता है। इस मुआहदे के नाफिज होने की तारीख 1 अप्रैल 1960 थी। तब से लेकर 31 मार्च 1970 तक, यानी तकरीबन 10 साल तक भारत पाबंद था कि वो मशरकी दरियाओं में मुआहदे के मुताबिक पानी छोड़ता रहे। ये इसलिए ज़रूरी था कि पाकिस्तान इस दौरान अपने हिस्से में आने वाले दरियाओं की मदद से मुतबादिल नहरी निज़ाम तश्कील दे सके। याद रहे कि कुछ शराइत के साथ ये 10 साल का वक्त 13 साल तक बढ़ाया भी जा सकता था। दूसरा नुकता, मगरबी दरिया पाकिस्तान को मिले। इस मुआहदे की रूह से दरिया सिंध, जेहलम और चनाब पाकिस्तान को मिल गए और भारत इनके बहाव को बिल्कुल भी नहीं रोक सकता। हाँ, अलबत्ता कुछ मकासद के लिए भारत इन दरियाओं का पानी इस्तेमाल कर सकता है, जो कि ये है। नंबर 1, इन दरियाओं और इनसे मुत्सिल नदी नालों वगैरह के पानी का घरेलू इस्तेमाल हो सकता है। नंबर 2, सिर्फ इन इलाकों में ज़रूरी इस्तेमाल हो सकता है जहाँ से ये बह कर आ रहे हैं। नंबर 3, इस मुआहदे के नाफिज होने से पहले से जो इलाके इन दरियाओं से सैराब होते चले आ रहे हैं, उनको भी सैराब करने का हक भारत को है। इन इलाकों की तफसील भारत पाकिस्तान को देने का पाबंद था। नंबर 4, इसके अलावा इन दरियाओं पर बंद बांधकर बिजली बनाने के लिए भी इनका पानी भारत इस्तेमाल कर सकता है इस मुआहदे की रूह से, लेकिन पानी वापस इन्हीं दरियाओं में डालना ज़रूरी है, यानी नहर वगैरह निकाल कर पानी दूर नहीं लेकर जाया जा सकता। ये पानी से बिजली बनाने वाला नुक्ता बहुत अहम है और इस पर बाद में तनाज़े भी बने, इनका जिक्र हम अभी आपके सामने करते हैं। 5वां नुक्ता, बाज़ नहरें जो पहले से निकली हुई थी और जम्मू के इलाके को सैराब करती थी, इनको भी भारत को इस्तेमाल का हक दे दिया गया, लेकिन पानी के बहाव की हद मुकर्रर कर दी गई। इस बहाव और ज़रूरी इस्तेमाल के इलाकों की तफसीलात भारत पाकिस्तान को देने का पाबंद था। इन इलाकों में पानी के बहाव की निगरानी का हक भी पाकिस्तान को दिया गया था कि कहीं भारत तयशुदा मिकदार से ज़्यादा पानी तो नहीं इस्तेमाल कर रहा। अब देखते हैं सिंध तास मुआहदे का तीसरा नुकता। तो दोस्तों, लाहौर शहर के बीचों बीच से गुजरने वाले गंदे नाले हडियारा का तो आपको पता ही होगा। ये नाला और 3 मजीद नाले, कसूर नाला, सलीम शाह नाला और फजील का नाला, जो इस मुआहदे के नाफिज होने से पहले से भारत से बहकर पाकिस्तान में दाखिल हो रहे थे, पाकिस्तान सिंध तास मुआहदे की रूह से इनकी देखभाल का पाबंद है और भारत इनमें इस मिकदार से ज़्यादा पानी नहीं शामिल कर सकता जितना मुआहदे के नाफिज होते वक्त इनमें बहकर आता था। और मज़ीद ये कि इन नालों में अगर पाकिस्तान मज़ीद निकासी का पानी डालना चाहे या ज़रूरी या इमरजेंसी मकासद के लिए इस्तेमाल करना चाहे तो पाकिस्तान खुद इसमें तोसी का ज़िम्मेदार होगा। और अगर इंडिया समझे कि इन नालों को चौड़ा करने या गहरा करने की ज़रूरत है तो वो पाकिस्तान को इसकी कीमत अदा करेगा, यानी पाकिस्तान सिर्फ इतनी मिकदार के पानी के इंतज़ाम का ही ज़िम्मेदार है जो मुआहदे के वक्त इसमें बह कर आ रहा है। चौथा नुकता, इस नुक्ते के मुताबिक मुआहदे के फ़रीक़ैन दरियाओं के कुदरती रुख को तब्दील करने की कोशिश नहीं करेंगे और ना ही पानी गंदा किया जाएगा जिससे दूसरी पार्टी का नुकसान हो, और अगर दरिया में कोई गंदा नाला या सनती फजला वगैरह शामिल होगा तो इसको दरिया में शामिल करने से पहले इस हद तक ज़रूर साफ़ कर लिया जाएगा कि इससे दूसरे फ़रीक को नुकसान ना हो और पानी नाकाबिले इस्तेमाल ना हो जाए। 5वां नुक्ता था रकम की अदायगी। जैसा कि हमने आपको तरबेला डैम की कहानी में बताया था कि भारत 6,20,60,000 पाउंड की रकम भी इस मुआहदे के तहत पाकिस्तान को एक साथ में अदा करने का पाबंद था, लेकिन भारत को ये रकम अदा नहीं करना पड़ी और दूसरे वर्ल्ड बैंक के मेंबर्स ममालिक ने रकम की अदायगी कर दी थी। 6वां नुक्ता, सैलाबी पानी का बहाव। मुआहदे के मुताबिक कोई भी पार्टी दरियाओं के कुदरती रास्तों पर सैलाब के दिनों में जितना चाहे पानी छोड़ सकती है और इसके नतीजे में होने वाले किसी नुकसान की जिम्मेदार भी नहीं होगी। हाँ, अलबत्ता वक्त से पहले इत्तला और पानी के बहाव की मिकदार की मुसलसल मालूमात फराहम करना ज़रूरी होगा। दोस्तों, इस शिक के तहत पाकिस्तान सैलाबी नुकसान का जिम्मेदार भारत को कभी भी नहीं ठहरा सकता और सैलाब से बचने का वाहिद हल मज़ीद डैम्स की तामीर है,
इस शिक के तहत पाकिस्तान ही खसारे में है, लेकिन जाहिर है कुदरती तौर पर ही पाकिस्तान दरियाओं के डाउन स्ट्रीम में वाक़या है, यानी दरिया भारत से बहकर पाकिस्तान में दाखिल होते हैं, इसलिए इस पर भारत को भी बहुत ज़्यादा कसूरवार नहीं ठहराया जा सकता। 7वां नुक्ता है पानी के बहाव की मालूमात शेयर करना। दोनों फ्रीकैन आपस में दरियाओं के मुख्तलिफ मुकामात पर बहाव, डैम्स में दाखिले और खारिज होने वाले पानी की मिकदार, नहरों के हेड से पानी के बहाव की मिकदार वगैरह रोज़ाना की बुनियाद पर या फिर जो भी दोनों फ्रीकैन में मुद्दत तय हो उसमें एक दूसरे को दिया करेंगे। इन मकासद के लिए फ्रीकैन मुख्तलिफ मुकामात पर ये मालूमात हासिल करने के लिए आलात भी नस्ब कर सकते हैं, लेकिन इसकी अदायगी दूसरे फ्रीक को अदा करना पड़ेगी। पानी के बहाव की मालूमात के अलावा अगर कोई पार्टी किसी दरिया पर कोई भी तामीराती या कोई और मंसूबा शुरू करना चाहेगी तो दूसरे फ्रीक को इस मंसूबे की मुकम्मल तफसीलात शुरू करने से पहले देने की पाबंद होगी। 8वां नुक्ता था मुस्तकिल इंडस कमीशन का क़याम। दरियाओं की तकसीम के इस पेचीदा मुआहदे के सही तरह से निफाज और दोनों ममालिक के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक मुस्तकिल इंडस कमीशन के क़याम का फ़ैसला भी इसी मुआहदे के तहत किया गया था, जिसमें दोनों ममालिक ने एक कमिश्नर अपॉइंट करना था और इनके असिस्टेंट्स भी, और इस कमीशन की साल में कम अज़ कम एक मीटिंग लाजमी करार दी गई थी। इन कमिश्नर्स का काम अपने अपने ममालिक के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ और मालूमात का हसूल और फराहमी था। नीज़ ये कमिश्नर्स दूसरे ममालिक के किसी मंसूबे पर एतराज़ भी उठा सकते थे और दूसरे मुल्क के किसी मंसूबे को जाकर इंस्पेक्ट करने का हक भी रखते थे। अपने अपने मुल्क की हुकूमत को सालाना रिपोर्ट बनाकर पेश करना इन कमिश्नर्स की जिम्मेदारी थी और इस रिपोर्ट में ये निशानदही कर सकते थे कि अगर कोई मुल्क किसी किस्म का नाजायज़ फ़ायदा उठा रहा हो या मुआहदे की खिलाफ वर्जी कर रहा हो, किसी भी किस्म के इख्तिलाफ को हल करने का फोरम भी इंडस वाटर कमीशन ही है। 9वां नुक्ता था न्यूट्रल माहिर या सालिस अदालत। अगर दोनों फ्रीकैन के माबैन किसी बात पर इख्तलाफ हो जाए और वो इंडस कमिश्नर से हल ना हो पाए तो एक न्यूट्रल माहिर तैनात किया जाएगा जो कि दोनों फ्रीकैन के इत्तफाक से चुना जाएगा और वो इस मसले को हल करेगा और अपनी तजावीज़ देगा। न्यूट्रल माहिर के अलावा बैनुल-अक़वामी सालसी की अदालत का ऑप्शन भी इस मुआहदे में दिया गया है और इस अदालत के क़याम से मुतल्लिक तमाम तफसीलात मुआहदे में तय कर दी गई हैं। 10वां नुक्ता जो आपके समझने का है वो ये कि क्या पाकिस्तान ने घाटे का सौदा किया। अगर हम सिंध तास मुआहदे की बात करें तो इसमें दोनों ममालिक में से किसी को भी खसारे में कहना आसान नहीं, क्योंकि 6 के 6 दरिया भारत से या भारत के मकबूजा कश्मीर से बहकर पाकिस्तान में दाखिल हो रहे हैं और कुदरती तौर पर जाहिर है भारत फ़ायदे में है, लेकिन इसके बावजूद 3 निस्बतन बड़े मगरबी दरिया पाकिस्तान के हिस्से में आए। इसकी एक वजह यह भी थी कि पाकिस्तान की 80% से ज़ायद आबादी इन दरियाओं पर इन्हिसार कर रही थी, जबकि भारत के पास इसके हिस्से में आने वाले 3 छोटे मशरकी दरियाओं के अलावा और भी दरिया हैं। मज़े की बात यह है कि पाकिस्तान में लोग कहते हैं कि अयूब खान ने दरिया भारत को बेच दिए, यानी घाटे का सौदा किया, और भारत में लोग कहते हैं कि नेहरू ने घाटे का सौदा किया और बड़े दरिया पाकिस्तान को देकर कमज़ोरी दिखाई। 11वां नुक्ता कि क्या भारत पाकिस्तान का पानी रोक सकता है। दोस्तों, इस मुआहदे के बाद पाकिस्तान और भारत की जंगें भी हुई, लेकिन ये मुआहदा कायम रहा, क्योंकि इंटरनेशनल मुआहदे की खिलाफ वर्जी करना भारत के लिए आसान नहीं। सियासी नारे अलबत्ता ज़रूर लगाए जा सकते हैं। हाँ, अलबत्ता सिंध तास मुआहदे की खिलाफ वर्जी किए बगैर भारत पानी के महाज पर पाकिस्तान को नुकसान इस तरह पहुंचा सकता है कि रावी और सतलुज में जो थोड़ा बहुत पानी साल के कुछ महीनों में आता है उसको भी रोक लें, क्योंकि मुआहदे के मुताबिक भारत इसका हक रखता है, लेकिन इसके लिए भारत को मज़ीद डैम्स और मुतबादल नहरी निज़ाम भी बनाना पड़ेगा। दोस्तों, आखिरी नुक्ता जो समझने का है वो है पाकिस्तान में पानी की कमी क्यों हो रही है। ये सवाल बहुत अहम है। हाँ, भारत ने भी दरिया चनाब और झेलम पर पानी से बिजली बनाने वाले कुछ मंसूबे बनाए हैं जिनसे पानी का बहाव पाकिस्तान में थोड़ा सा मुतासिर तो हुआ है, जैसे कि दरिया चनाब पर बनने वाला बगलियार डैम और दरिया नीलम पर मकबूजा कश्मीर में बनने वाला किशन गंगा हाइड्रो प्रोजेक्ट। लेकिन मुआहदे की रूह से भारत इसका हक रखता था, क्योंकि वो पानी सिर्फ बिजली बनाने के लिए इस्तेमाल कर रहा था। बगलियार डैम पर पाकिस्तान के एतराज़ पर वर्ल्ड बैंक के न्यूट्रल माहिर ने मामूली तब्दीलियों के साथ
भारत का मौक़िफ़ तस्लीम कर लिया था, जिसको पाकिस्तान को भी कबूल करना पड़ा था। इसी तरह किशन गंगा हाइडल प्रोजेक्ट पर पाकिस्तान ने बैनुल-अक़वामी सालिसी की अदालत में भी अपना मुकदमा लड़ा, लेकिन भारत का मौक़िफ़ तस्लीम कर लिया गया। भारत के इस प्रोजेक्ट की वजह से पाकिस्तान के नीलम जहलम प्रोजेक्ट की बिजली बनाने की सलाहियत में 10% तक कमी हुई है, क्योंकि नीलम जहलम में अब पानी कम रफ्तार से आता है और किशन गंगा अप स्ट्रीम पर मकबूजा कश्मीर में दरियाए नीलम ही पर वाक़या है, जो दरियाए जहलम का ही हिस्सा समझा जाता है। लेकिन इसमें भी हमारी सुस्ती इस तरह है कि भारत ने अपना प्रोजेक्ट हमसे बाद में शुरू किया और हमसे पहले मुकम्मल कर लिया। दोस्तों, पाकिस्तान में पानी की कमी की बड़ी वजह हमारी अपनी नाअहली और लापरवाही है। पाकिस्तान ने मंगला और तरबेला के बाद कोई बड़े बड़े डैम्स नहीं बनाए, न पानी को ज़ख़ीरा करने का कोई मुतबादिल निज़ाम बनाया। लेकिन आबादी इस दौरान 4 गुना बढ़ चुकी है और वो 2 डैम भी शायद हमने जल्दी में इसलिए बना लिए कि मजबूरी थी। इंडस बेसिन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के तहत वो बनना ही थे, वरना मशरकी दरियाओं से सैराब होने वाले इलाके बंजर हो जाते, जो कि कुछ हो भी चुके हैं। बहावलपुर विजन की मिसाल हमारे सामने है। डैम ना बनाकर पाकिस्तान दोहरा नुकसान बर्दाश्त कर रहा है। एक तरफ तो पानी की कमी का शिकार होने के बावजूद इंतहाई कीमती साफ पानी समंदर में गिर कर ज़ाया हो जाता है, और दूसरी तरफ सैलाब आने से मुआशी और ज़रई नुकसान भी होता है। भारत ने आज तक 5000 छोटे बड़े डैम बनाए हैं और पाकिस्तान में बनने वाले डैम्स की तादाद सिर्फ 300 के लगभग है। ऐसे में अपनी तबाही का जिम्मेदार किसी और को ठहराना अक्लमंदी नहीं है। हद तो ये है कि 2002 से 2009 के दरमियान भारत ने दरिया सिंध पर 2 आबी मंसूबे नीमो बाजगो और चुटाक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट बिजली की पैदावार के लिए बना लिए हैं। ये दोनों मंसूबे जो दरिया सिंध पर कारगिल और डिस्ट्रिक्ट लेह में बनाए गए, पाकिस्तान की लाइफ लाइन दरिया सिंध का 12 करोड़ क्यूबिक मीटर पानी स्टोर करने की सलाहियत रखते हैं। और जाहिर है इस पानी से सिर्फ बिजली ही बन रही है, लेकिन दरिया सिंध के पानी के बहाव में कमी तो बहरहाल हुई है। और हमारे इंडस वाटर कमिश्नर जमात अली शाह ने उस वक्त ना तो ये मामला भारत के सामने उठाया और ना ही हुकूमत को आगाह किया। हमारी हुकूमत और रियासती इदारों को जब होश आया तो पानी सर से गुजर चुका था और भारत तामीराती काम तकरीबन मुकम्मल कर चुका था, और इस मामले को अब आलमी अदालत में ले जाना भी बेसूद था, क्योंकि हमारे अपने कमिश्नर ने इस प्रोजेक्ट पर एतराज़ नहीं किया था। जब जमात अली शाह के खिलाफ 2012 में कार्रवाई शुरू हुई तो वालिदा की इयादत का बहाना करके वो कनाडा चले गए, जहाँ की वो मुबैना तौर पर नेशनलिटी पहले ही रखते थे। दोस्तों, पाकिस्तान को डैम बनाना होंगे, वरना आने वाले चंद सालों में पानी की शदीद कमी का सामना करना पड़ सकता है, जिसके आसार अभी से नमूदार होना शुरू हो चुके हैं। आपका क्या ख्याल है? पाकिस्तान में डैम ना बनना और पाकिस्तान में पानी की कमी में हमारा अपना कसूर है या सिर्फ भारत ही इसका जिम्मेदार है? कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दें, और अगर आप मंगला डैम और तरबेला डैम्स की कहानियाँ देखना चाहते हैं तो इन बॉक्सेस पर क्लिक कीजिए। शुक्रिया।